ارے واہ، خوش فہمی کا شکار محمود صاحب، 2-3 گھنٹے کام کر کے تھک تو نہیں گئے؟ یہ لو، یہ 5200 تمہارا آج رات کا حصہ. لگتا ہے آج لمبا سفر کرنے والا مسافر نہیں پکڑا ہے نا. یہ 5200 تمہارا حصہ ہے. کیا ڈرامے ہیں. ناصر کی جان کی قسم، یقین کرو وہ آدمی خالی ہاتھوں سے نوٹ چھاپ رہا تھا. چھوڑو یہ باتیں، میری بیوی اپنی ماں کے گھر گئی ہوئی ہے، کوئی بھی گھر پہ نہیں ہے. اب رہنے دو ناصر صاحب، کم از کم رمضان کے مہینے میں اپنی یہ غلط بساط سمیٹو. اب اتنی بھی پرہیزگاری مت دکھاؤ سید خلیل کے بیٹے، ابھی سحری میں کافی ٹائم ہے. اصل رمضان کا مہینہ سحری سے شروع ہوگا. چلو نا یار. نہیں ناصر، چلو نا، ضد نہیں کرو، چھوڑو مجھے ناصر. چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. الحمدللہ رب تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا جان ہے اور جو بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. اهدنا الصراط المستقيم. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وہ مسافر کیا کہہ رہا تھا؟ الٹی سیدھی باتیں. ان اوٹ پٹانگ لوگوں میں سے تھا جس نے 1 سال تک 100 لوگوں کی جیب کاٹی اور پھر بھاگ پڑے. پتہ ہے ناصر، ہم خواہ وقت ضائع کر رہے ہیں. وہ شخص کہہ رہا تھا کہ اس نے اپنے تمام کام چھوڑ دیے اور چاول اور تیل وغیرہ کے درآمد برآمد کا کام کر رہا ہے. لے جاتا ہے عراقیوں کے لیے اور عرب علاقوں سے کھال لاتا ہے وغیرہ وغیرہ. کون سی کھال میرے بھائی؟ سنتے رہو مگر یقین مت کرو کسی کا. کس بات پہ یقین نہ کروں؟ پگلے کہیں کہ یہی ہماری حرکتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم سے بہتر لوگ آتے ہیں، ہمیں رنگ چونا لگا کر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. میرے تائے کی مثال میری آنکھوں کے سامنے ہے. 4 سال پہلے میرے باپ کی دکان کے برابر میں ان کا ایک چھوٹا سا ادارہ تھا. اس کام کو سرے سے چھوڑ کر آج ایک بڑے بلڈر بن گئے. 2 سال بعد پتہ نہیں ایک کمپنی کھول لی اسی مارکیٹ میں اور ایک اور جگہ کھول لی. ناصر پتہ ہے کیا کیا انہوں نے؟ ایک اور عمارت بنا ڈالی. وہ تقریباً 40 منزلہ عمارت تھی جو کہ صرف 4 سال میں بنا ڈالی. صرف 4 سال میں ناصر. اور ہم صرف وہیں کے وہیں ہیں اور 4 سال سے بس ٹیکسی گھما رہے ہیں اس شہر میں. نہیں محمود صاحب، یہ سب باتیں تمہارے چچا بھائی نے خود بنائی تمہارے لیے. بہتر یہ ہوگا کہ تم ذرا سا غیرت مند بن جاؤ ناصر صاحب. میں تمہیں ایسا کیا کہوں جو تمہیں برا نہ لگے محمود صاحب؟ کیا یہ ٹھیک ہے کہ میں کہہ دوں کہ یہ کام ڈھنگ سلیقہ مانگتے؟ ناصر میرے پاس ڈھنگ سلیقہ نہیں ہے. میں نے کہا اس کا اپنا ڈھنگ سلیقہ. اکرم، ٹینا اٹھ جاؤ، سحری کا وقت ہو گیا ہے. خدا تمہاری عاقبت بخیر کرے. آپ ایک نیم کر لیجئے اکرم صاحبہ، میں کھانا گرم کرتی ہوں. ارے دادا جان،
सुबह सुबह कहाँ चले आप? मैं किसी के घर जा रहा हूँ। किसके घर? अब लोगों के मसले हल करने चले? मेरे दिल को करार नहीं आता। अब अकेली सन्नाटे में मस्जिद की तरफ मत निकल जाना। मैं इस रमजान में आपको ठीक करके रहूंगी। आप लौटिए तो, अगर कल से आपको तन्हाई में बैठने दिया तो कहिएगा। कुर्बान जाऊं आप पे। अकरम, अब सोने की जरूरत नहीं है, खाना गर्म हो गया है। क्या ऐसा नहीं कि 4 साल पहले तुम्हारे ताया ने अपनी दुकान बेच दी और बहुत बड़े बिल्डर बन गए, और तुम्हारे बाप ने तुम्हें अच्छी खासी रकम दी, मगर तुमने अपनी इन्हीं हरकतों की बिना पर सारे पैसे अपनी तायाजाद बहन के चक्कर में बर्बाद कर दिए। ये सब मैंने ही तुम्हें बताया था कि उस अजीब और गरीब लड़की का आशिक हो गया था मैं। मुझे क्या बता रहे हो नासिर? अब जो भी हुआ मेरे भाई, अगर तुम्हारे पास जरा सी भी आगे देख के चलने की आदत होती और जिस ढंग सलीके का मैं कह रहा हूँ वो तुम्हारे पास होता, तो उसी रात तुम अपनी कील मजबूती से ठोक चुके होते कि तुम्हें किसी का कोई डर नहीं होता। और रहे तुम्हारे ताया, जब कभी तुम्हारे ताया तुमसे पूछते कि तुम मेरी बेटी से मिलने क्यों आते हो, तो तुम्हारे पास आस्तीन में जवाब तो होता। मैं उस वक्त भी इतना बेगैरत नहीं था नासिर, अब भी नहीं हूं। हंसो 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 और हंसो नासिर साहब, लेकिन सिर्फ एक चांस मुझे मिल जाए तो अपने उस बेगैरत ताया को समझा दूंगा कि किसके पास ज्यादा ढंग सलीका है। अरे खुश फहम आदमी, चांस भी उल्लू बनाने वाली चीजों में से एक है। हाँ उल्लू साहब, हाँ। आ गई बहार पर याद तुम नहीं। क्या बात है जनाब की। ला 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 ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माफ कीजिएगा, नमाज के वाले वक्त तंग करने आ गया मैं। खुदा माफ करे। हाजी साहब, सुबह के इस वक्त? हम जाकिर हजरात एक दूसरे की जुबान अच्छी तरह समझते हैं। मुझसे इतना सब्र ना हो सका कि मैं मार्केट में आ जाता। यह है मेरी दुकान की चाबी। कोई एहसान या तकल्लुफ नहीं है। मैं उस नीचे वाली दुकान में गुजारा कर लूंगा। खुदा गवाह है, मैंने अब तक आपकी दुकान देखी भी नहीं है कि ये समझ सकूं कि वो कितनी बड़ी और कितनी चौड़ी है। सच पूछिए तो कल जरा मैं गुस्से में था हाजी साहब। अच्छा वो आपने बता दिया। सच तो ये है कि मैं अपनी किताबों में गुम था। ये लो बंदे खुदा, मुझे यकीन है कि मेरा भाई कामों में इतना मसरूफ होगा कि उसे ये पता नहीं होगा कि किसे क्या देना चाहिए। सैयद खलील, हमारे जद के वास्ते मुझे माफ कर दे। सुने तो मसला हल हो चुका है। आपके भतीजे ने मसला हल कर लिया है और ये तय पाया कि ग्राउंड फ्लोर की दुकान मुझे दे दी जाए, जो कि अब एक दफ्तर है। रमजान के बाद खाली करके मुझे दे देंगे। यानी मतलब आपके भाई ने काफी हद तक मुझे मक्खन लगाया है। भाई, अब तुम मुझे इतना शर्मिंदा मत करो, मौला का वास्ता। मतलब मेरे सर पर आपका कोई कर्ज तो नहीं है? जिम्मा तो कोई नहीं है ना? कैसा कर्ज, कैसा जिम्मा? मेरा झगड़ा आपके भाई से था। मुझे इतना शर्मिंदा मत करो सैयद, मुझे माफ कर दो सैयद। भाई, गुस्से वाले आदमी की अक्ल उसकी जुबान पर होती है। मैं तो कहता हूं कि आओ अंदर चले, तुम नमाज पढ़ के सह आराम कर लो, बाद में खुद मैं अपनी गाड़ी से तुम्हें छोड़ आऊंगा। आओ। खुदा खुश रखे कि रमजान के शुरू में ही दिल को सुकून दे दिया तुमने। अस्सलाम वालेकुम मरियम साहिबा, कैसी हैं आप? क्या हाल है? खरीदारी के लिए जा रही हैं आप? जी। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। चलो चलो चलो, मुझे देर हो रही है, भागो यहाँ से। ऐसा भी क्या हो गया भाई? पीछे बैठो। देर से पहुंचोगे ताया तुम्हें निकाल देंगे ना। आप फिर इस तरफ नजर आए, फकीर कहीं के। तुम्हें क्या चाहिए इस घर से?
دیا تم نے؟ السلام علیکم تعداد بہن. وعلیکم السلام. فرمائیے. آپ جائیے نا, آپ کو دیر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے فریدہ صاحبہ, کوئی کام تو نہیں ہے, کچھ نہیں, لانا نہیں, تو نہیں شکریہ. ہے, مجھے دیر آپ ہو رہی ہے. جائیے, آپ جائیے نا. خدا حافظ. خدا حافظ. تمہیں اس گھر میں کس نے آنے دیا؟ ویسے میں کہہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بچے بہت جلدی بڑے ہو جاتے نا, انسان کو اپنے ماضی اور سفید بالوں کی یاد دلا دیتے ہیں. جی ہاں, تو اور کیا تمہارے بچے تو نہیں ہیں جن کے بڑے ہونے کا تم سے کوئی تعلق ہو؟ حاصل اور پھل وغیرہ اچھا ٹائم پاس ہوتا ہوگا نا فریدہ صاحبہ. وہ شاہین. ٹائم پاس کرنے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اللہ کرے تمہاری زبان کو سانپ ڈس لے. بہت شکریہ تائزاد بہن. شاہین کچن میں ہوگا. یہ کس کی آواز ہے فریدہ؟ چچا کا بیٹا محمود آیا ہے, اسے آپ سے کام نہیں ہے, شاہین سے ملنے آیا ہے ہمیشہ کی طرح. ہاں بھائی, اب بولو کس کی زبان سانپ کی طرح ڈسنے والی ہے فریدہ صاحبہ؟ کیا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ تم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنی پھول سی تائی کو دیکھ سکیں؟ محمود اوپر آ جاؤ. وہ تکیہ میرے پیچھے رکھ دو. قربان جاؤں تائی جان آپ پر کہ آپ کو ٹیک لگانے کے لیے کسی کی ضرورت ہوتی ہے. اوہ کیا شاہکار ہے. میں کہتا ہوں تائی جان, ہمارے تایا اپنے عیش موج کے لیے اتنا خرچہ کرتے ہیں اور اپنے دوستوں پہ اڑاتے رہتے ہیں. کاش ذرا سا آپ کے علاج معالجے پر بھی خرچ کر دیتے اور آپ کو انگلینڈ کے ایک بڑے اسپتال میں لے جاتے. تمہاری یہ فتنہ انگیزی والی باتوں کا کوئی آخر بھی ہے؟ اس دن شاہین بتا رہا تھا کہ رامین نے آپ کو اس کے لیے راضی کر لیا ہے. کیا تم واقعتاً اپنی زبان کو لگام نہیں دینا چاہتے؟ اب یہ بتائیے تائی کہ واقعتاً فائدہ بھی ہوا تھا یا صرف رامین کا دل خوش کرنے کے لیے ماں بن گئی تھی آپ؟ اگر تم وقت سے پہلے افطاری کرنا چاہتی ہو تو میں چائے منگا لوں تمہارے لیے. نہیں تائی, یقین کیجئے میرا روزہ ہے. اصل میں آج رمضان کا پہلا دن تھا اس لیے مجھے یاد نہیں رہا. لیکن تائی واقعاً کیسی آفت آپ کے سر پر آ گئی؟ جو آفت میرے سر پہ آئی ہے وہ اتنی بڑی بھی نہ تھی جتنی بڑی آفت ہمارے اپنے دوستوں کی نظر بد سے ہوئی. رامین کا کوئی قصور نہیں تھا. کسی اپنے کی نظر بد اور ہائے لگ گئی. کہیں آپ کا مقصد میرے والد صاحب تو نہیں؟ ان کو جتنا بھی ہنر آتا تھا انہوں نے لگا دیا تاکہ خدا سے آپ کے لیے شفا مانگ لیں. آپ یہ کیوں سمجھ رہی ہیں کہ میری اور بابا کی بد دعا سے ہوا ہے؟ تمہیں بھی اگر کہا ہو میں نے تب بھی اس بندے خدا کو ہرگز نہیں کہا. میری طرف سے انہیں سلام کہنا اور گزارش کرنا کہ اس رمضان میں مجھے یہ دعا دے کہ خدا مجھے اٹھا لے اور میری جان چھوٹ جائے. یہ کیا بات ہوئی تائی جان, کھل کے کیوں نہیں کہہ دیتی کہ آپ جہنم میں رہ رہی ہیں؟ باہر جاؤ محمود. جی اچھا تائی جان, یہ افطاری کے لیے. ویسے تائی جان اگر باقی افراد کے پاس مصروفیات بہت ہیں اور آپ کو انگلینڈ نہیں لے کے جا سکتے علاج کے لیے تو میں چچا سے بات کروں کہ باہر چلے جاؤ, مجھے آرام کرنا ہے. بہت شکریہ. لا 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 ارے واہ, ارے واہ, یہ چیز ہوتی ہے, یہ میری ہونی چاہیے. ہلو گاجر کے چھلکے. محمود صاحب میں دیکھ رہا ہوں تمہارے تینوں فیس اڑ گئے. ہاں ارے حسین آدمی, تم نے یہ نہیں سوچا کہ اگر میری جگہ میرے والد صاحب دیکھ لیتے کہ تم ان کی کرسی پر بیٹھے ہو تو ابھی تمہارا سر اس بکرے کے سر کی بجائے دیوار پہ لٹکا ہوتا.
आते हुए देख लिया था, वो गाड़ी में जा रहे थे। शाहीन, रोजाना यहाँ काफी सारी चीजों का इजाफा होता रहता है, एक बात क्या है? क्या ये भी उन्हीं रिश्वत के पैसों से लिया है जो तुम्हारे बाबा लेते रहते हैं? बकौले शायर अंधा हो जाए हर एक शख्स जलने और कुड़ने वाला। अंधा क्यों हो जाऊं? बड़े लोगों की जगह पर टेक नहीं लगाई जा सकती सिवाय इसके कि हराम खाया हो। बंद करो अपना ये मुंह, मैं तुम पे हंसा क्या? देखो शाहीन, मेरे दिमाग में एक नई सोच आई है, बिल्कुल ताजा सोच। मार डाला तुमने अपनी नई सोचों से। कल रात ही आई है। दरवाजा बंद करो। देखो शाहीन, सरमाया तुम्हारा, बाकी मेरा। कसम से यहाँ से मुफ्त तेल खरीद के इराक ले जाएंगे और उसके बजाय खाल खरीद के ईरान ले आएंगे। 2 हफ्ते बाद तुम्हारे बाबा भी हमारी पीठ थपक कर बोलेंगे शाबाश, जबरदस्त। फिर हम टांगे लंबी करके पैसा कमाएंगे। जबरदस्त, वाह भाई वाह, अच्छा मशवरा है महमूद साहब, मगर इसमें सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम है महमूद साहब, ना तो आपके पास तिजारती कार्ड है और ना ही मेरे पास। देखो, मैं इस छोटे से मसले को हल कर देता हूँ। तुम्हारे बाबा अपने एक आध दोस्त से बात करेंगे और हम भी उनके हाथ में कुछ रख देंगे और उनके कार्ड को इस्तेमाल कर लेंगे। कुछ रख देंगे उनके हाथ में? मेरे ख्याल से तुम्हें भी कुछ हो गया है। शाहीन, ये कहो ना कि तुम ये काम नहीं कर सकते और रामीन की तरह अपने पांव पर नहीं खड़े हो सकते। हमें भी सुकून मिल जाएगा। भाईजान, हम खुद इस खेल के खिलाड़ी हैं, तुम हमें बेवकूफ समझ रहे हो? रामीन सारी जिंदगी मेरे पाँव की धूल तक भी नहीं पहुंच सकता। नहीं पहुंच सकता? क्या तुमने नहीं बताया था कि रामीन अपना मार्केटिंग ऑफिस खोल रहा है? अभी दिल्ली दूर है, मेरे बाबा ने उसे इजाजत दे दी और उसने अपना दफ्तर खोल लिया। हाँ, और फिर आप खुद अपने बाबा जान से अलग होकर आजकल कहाँ भटक रहे हैं, सिवाय इसके कि मार्केट की तरफ से गुजरते नहीं, ताकि कहीं तुम्हारी नजरें उस दुकान पे पड़ जाए, तुम्हारा दिल ललचाए। बेहतर होगा कि तफरीबाजियां छोड़ो और हमारा मौजू मुकम्मल करो कि अब करना क्या है। ठीक है जनाब आली को जो बात मैं आखिर में कहना चाहता था वो मैं पहले ही कह देता हूँ। मैं सिर्फ एक शर्त पे अपने बाप को राजी कर सकता हूँ आपके साथ पार्टनरशिप पर, और वो ये कि तुम भी बीच में कोई पैसा लगाओ, मसलन तुम्हारे बाबा की दुकान या इस जैसी कोई और चीज, समझे? कल को ये ना हो कि तुम आके कहो कि मेरा तो काम ही मेरा सरमाया है, तुम्हें तुम्हारे जद की कसम, वरना फिर मुझे भी हंसी आ जाएगी और बाबा को भी। देखो, तुम्हारे बाबा ने मुझे सारी जिंदगी इसी तरह घुमाया और खंदा पेशानी नहीं दिखाई, और मेरे पास जो कुछ था मैंने उसके बच्चों पर लुटा दिया। अब महमूद किसी गिनती में नहीं। भाईजान अपने अल्फाज पर गौर करो जरा, तुम थे किस गिनती में? तुम्हारे पास था ही क्या जो तुम मुझ पे, बाजी पे और रामीन पे खर्च करते हो? भाईजान, आखिर तुम समझते क्यों नहीं हो? अगर मैं बहुत ज्यादा जिद करूंगा तो बाबा दीना का हाथ पकड़ेंगे और जाके दुकान को बाकायदा उसके नाम करा देंगे, बकौल मेरे दोस्त अमीर अजीजी के, खल्लास खत्म करो खल्लास। अरे छोड़ो भाई, अमीर अजीजी को छोड़ो, ये बताओ क्या वाकई दीना आ गई है? मुझे क्या मालूम, वैसे रमजान के पहले हफ्ते में आने वाली थी। वो मेंढक कहीं की। अरे वाह महमूद साहब, पैदल कहाँ जा रहे हैं? इधर आओ, हम तुम्हारी खिदमत में हाजिर हैं यार। चलो रास्ते में बातें करते हैं, और रही बाबा की बात तो उनको कुछ ऐसा कहेंगे कि वो एक बिजनेस शुरू करने पर राजी हो जाएं और मिल के खाएंगे। आओ बैठ जाओ ना, आ जाओ ना। वैसे शाहीन साहब, अपनी मिसाल आप हैं। बहुत शुक्रिया। वैसे महमूद साहब, ये दीना साहिबा की पढ़ाई कब खत्म होने वाली है, बताया नहीं तुमने? छोड़ो भाई, रहने दो। धुम पटक धुम धुम पटक धुम धुम पटक धुम धुम पटक धुम धुम। जी हाँ, मैंने आपकी सेक्रेटरी को बताया था कि मैंने सुना है चंद दिनों से जावेदियान साहब की मार्केट खुल गई है। जी हाँ, मैं उनसे बात करना चाहता था, लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद बात नहीं कर सका। जी हाँ, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो ये मेरा जाती मामला है कि मुझे उनसे क्या काम है। जी अच्छा जरूर, फोन तो मेरे हाथ में ही है। हाँ क्या? बकवास मत करो चोर कहीं के, तुम जैसे चोर अब मुझे मेरा फर्ज बताओगे? उस जलील सुहावजादे से कहो मेरे लिए उसने अपना नाम तक बदल लिया है। वो खुद को समझना क्या है? भाई साहब तमीज से बात कीजिए। तुम सब मादक बिदर आजाद लोगों की बेइज्जती करके रहोगे। जाओगे तुम, बस जाओ, जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो। अब ये 1000 दफा भी फोन करे तो मत उठाना, काट देना, ठीक? जी अच्छा। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, ये आदमी अपने मुंह से भी बड़ी बात कर रहा है। डॉक्टर भाई 5 लाख का चेक काट लो उस 33 मंजिला टावर के बराबर वाले स्कूल के लिए। अब किस लिए? ये तो पागलपन है। बाबा कह रहे हैं कि जब पड़ोसियों को ये नजर आएगा कि हमें उनके बच्चों की पढ़ाई की फिक्र है तो वो टावर के उनके घरों के सामने होने के मसले को दबा देंगे। हाँ क्या वाकई? अरे वाह भाई जनाब, कहाँ थे आप अब तक? 11 बज रहे हैं, बाबा आपको देखना चाहते हैं।
अरे छोड़ो ना डॉक्टर, उनसे कहो कि ट्रैफिक में फंस गया था, आया और फौरन रामीन के साथ मार्केट चला गया। ओ माफ कीजिएगा, हाँ मुझे आज बहुत सारे काम है, अब तुम अकेले मार्केट जाओगे। जल्दी ऊपर आओ, समझे? रुकना जरा, ये मामला क्या है? कुछ नहीं, मेरे और बाबा के बीच ये तय हुआ है कि अब मुझे जरा सा आजाद छोड़ दें ताकि मैं अपने दफ्तर की कागजी कार्रवाइयों की भागदौड़ कर सकूं। ये अच्छा है, तुम बाबा के साथ हमेशा खिचड़ी पका लेते हो और सारे छोटे मोटे काम मेरे सर डाल देते हो। माफ कीजिएगा, वैसे मैंने 2.5 लाख रुपए इस मार्केट से कैश नहीं लिए जो मैं जाके लोगों के जवाब दूं। अब हमेशा तो मैं तुम्हारी कारस्तानियों का खमियाजा नहीं भुगत सकता ना। इतना खमियाजा मत भुगतो, तो कमजोर हो जाओगे। अब तुमने मार्केट की इतने आला पाई की दुकानों से कोई फायदा नहीं उठाया तो मैं क्या करूं? मैं कुर्बान जा, तुम अपना हिस्सा पहले ही ले लेना चाहते थे ताकि अपने पैरों के नीचे गाड़ी रख सको। शाहीन, मेरे पास अब फुर्सत नहीं है, अब तुम जानो, बाबा जाने और ये बेचारे मार्केट वाले लोग। इसको डरा रहे हो भाई? एक बात गौर से सुन लो, बाबा चाहे जिस कदर भी तुम्हारा मुझसे ज्यादा ख्याल रखें, लेकिन मैं तुमसे पहले अपनी जिंदगी बनाऊंगा और शादी करूंगा। तुम्हारी अक्ल तो बिल्कुल ही जवाब दे गई है। तो फिर ये किताबें कल के लिए रह अपने जाएंगी? बेटे से कहूंगा कि कल कुर्बानी का जानवर आपके लिए ले आए। हाँ ठीक है, मगर सफेद हो या खाकी, या सफेद और खाकी दोनों रंगों का। आप बस मंगवा लीजिए। अरे नहीं भाई, मुझे उसकी खाल से जमीन पर बिछाने वाला फर्श बनाना है। अरे भाई अकरम, तुम्हें इसकी खाल से क्या लेना देना? भाई साहब आप जाइए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शायद हाजी को उस खाल की जरूरत थी कुर्सी बनाने के लिए। देखिए मोहतरमा, आप यही कौम परस्त वाली बातें करती हैं कि जिसके बायस आपकी दादाजान से बनती ही नहीं है। आखिर एक दुनिया। सलाम चाचा, मैं कल रात से अब तक आसमान को देख रही हूँ कि सितारा सहल कब नीचे आएगा। आप कहाँ हैं भाई? वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। कितनी खुशी हो रही है ना आपको मुझे देखकर। इजाजत देंगे? नहीं, मैं बहुत ज्यादा थका हूं दीना, मुझे सोना है। ठीक है, सिर्फ इतना बता दें कि कहाँ हूँ ताकि मैं आपको बदल के दे दूं। क्या चीज? वो गीली घास जो मैंने आपको बेची है। हाँ, जाहिर है तुम्हें हंसना भी चाहिए तानेबाज। तो फिर जिंदगी पर के चंद साल बाद मैं जमीन पर सोऊं और अपना दुख दर्द अपनी भतीजों को सुनाऊं। अब अगर कोई भी कुछ न जानता तो मैं कह सकता था कि तुफ है इस दुनिया पर कि हर शख्स मां की आगोश से खिलाड़ी बना रहा है यहाँ। ठीक है मेरे नाड़ी चाचू, अगर आपका मकसद ये है कि मैं अपने दादाजान की लाडली हूँ तो ठीक है। अगर आपका मकसद ये है कि मैं जाऊं और आपकी सिफारिश कर दूं तो भी ठीक है। लेकिन अगर आपका मकसद ये है कि मैंने ये कहा कि उनकी दुकान मेरी है तो जी नहीं, मैं हरगिज़ इस बात के और आपके जमीन पर सोने के दबाव में नहीं आने वाली हूँ। तुम भी मुसलमान हो, तुम्हारा भी ज़मीर है। तुम उन्हें यह मनवा सकती थी कि तुम्हें उस दुकान की जरूरत नहीं है। तुमने अपनी इन पोतियों नवासियों वाली हरकतों से उन्हें फिजिक पढ़ने से कैसे राजी कर लिया? वो भी ऐसे इंसान को राजी कर लिया जो समझता था कि वो 2000 साल पहले के दौर में जी रहा है। अपने उल्टे पांव के साथ गुस्ल खाने में जाता और सीधे पांव के साथ बाहर निकलता और कुछ विर्द पढ़ने से खुदा के मुकर्रब बंदों में शुमार हो जाता है। पहली बात तो यह है कि आप ये फजूल की बातें उसके सामने कहिए जो दादाजान को जानता ना हो और उसने उनके साथ जिंदगी बसर न की हो। दूसरी बात यह कि यानी तुम ये कहना चाहते हो कि मेरे बाप को मुझसे ज्यादा पहचानती हो? बेशक तुम कह सकती हो दीना। अरे बाबा, जाहिर है तुम्हारे हाथ जल्दी लग गए, क्योंकि मेरे बाप से ज्यादा सीधा साधा आदमी इस दुनिया में नहीं मिलेगा। एक बात याद रखना, तुम अच्छी जगह पर खड़ी हो, क्योंकि अगर सारी दुनिया एक दूसरे के सर पर टोपी रखने की फिक्र में रहती है तो मेरे बाबा एक दिन में इससे उससे लेकर एक अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अपने सर पर रख लेते हैं। जानती हो क्यों? क्योंकि उनकी सोच यह है कि उस दुनिया में जन्नत उसी को मिलेगी जिसके तोशे आखिरत में सबसे ज्यादा टोपियां हों। समझी? अच्छा, इस तरह से सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि अगर ये बातें ठीक हूं तो मैंने 100 दफा अपनी टोपी उनको दी है। उठें दादाजान, उठें, जल्दी चलें और दुकान को मेरे नाम करवाएं। दूसरी बात, ये भी तुम्हारी एक चाल है। तुम्हें खुद मालूम है कि फिलहाल तुम पढ़ाई कर रही हो और वो इन हवाई कमाई के जरियों से 2-4 पैसे कमा लेंगे, उन्हें इसकी जरूरत भी है। इन सब बातों के बाद कोई वजह नहीं कि तुम अपने आप को बुरा बनाओ।
चचा आप मुझे बिलाखिर दूसरी बात बताने देंगे या अपने शोर शराबे में इन बातों को घुमाते ही रहेंगे? कौन सी बात? कौन सी दूसरी बात? हाँ, तुम्हारी दूसरी बात ये बाज ऐसे बेजमीर अफराद की तरह होगी जो मुझ जैसे बेसहारा शख्स से जान छुड़ाने के लिए होती हैं। देखें रुको चचा, तो सही, क्या ऐसा नहीं कि तुम भी मेरे दोस्त नासिर की तरह और शाहीन और दीगर लोगों की तरह सारा किस्सा मेरे सर पर डालना चाहती हो कि तुमने अपना सारा विरसा उस फरीदा और बेजमीर ताया पे क्यों खर्च कर दिया? आखिर मकोड़ा होता ही कितना सा है, उसके एक सिरी पाए कितने होंगे? आखिर इस घर में मेरा हिस्सा था ही कितना था जो मुझे बार बार तंग करते हो तुम लोग। बाबा घर बेचना चाहते थे मेरी माँ के चेहरे की खातिर जो वहां के दर दीवार पे मौजूद था। मैंने भी उनसे एक बात कर ली कि एक ढंग का घर ले लीजिए कि सरमाया खा के ना मरे आप और मुझ जैसा आफतज़दा का हाथ भी थाम लें, क्योंकि कोई मुझे पूछता भी नहीं है कि मेरे ताया ने मुझे कैसे कैसे सब्ज़बाग दिखाए थे। मैंने भांप लिया था कि वो अपनी बेटी के जरिए वो मेरे सर पर टोपी रखना चाहते थे और अपनी बेटी को अपनी तरह के एक नमक हराम की बीवी बनाना चाहते थे। आपको पता है चचा मेरे और दादा जान के दिल में इस मामले के मुतालिक क्या है? ये है कि ताया को बिल्कुल ये हक था कि वो पहले अपने दामाद को आजमा ले कि आया वो वाकईतन कामकाज और जिंदगी चलाने वाला है या नहीं, या सिर्फ अपनी बेटी पे डोरे डालने के लिए मंडलाता रहता है। इन सब के बावजूद फिर भी मैंने जी अच्छा कहा, अगर आप चाहें तो मैं उनसे बात करती हूँ। अगरचे कि आपका और अकरम साहिबा का दिफा करने के चक्कर में हर बार मैंने उनकी तन्हाई की ज्यादा फिक्र की। अब आप भी रोना बंद करें और थोड़ा सोच जाएं, शायद कि आपकी हालत ठीक हो जाए। शायद हालत ठीक हो जाए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और कोई हुक्म? ममनून हूँ आपका। कोई बात नहीं हाजी साहब। खुदा खुश रखे आपको। खुदा हिम्मत दे। कोई बिजली वाला है तुम्हारी नजर में जो स्विच लगा दे? एक बल्ब और स्विच लगाने के लिए कारीगर की जरूरत थोड़ी है हाजी साहब। अगर आप चाहें तो असर तक सारे काम कर दूंगा आपके। हाजी साहब अभी मैं एक बोर्ड लेने जा रहा हूँ, 1 घंटे तक वापस आ जाऊंगा। ठीक है ठीक है। बात सुनो, क्या मुझे इजाजत है कि तुम्हारी हथौड़ी और एक कील इस्तेमाल कर लूं? जी हाजी साहब आपको इजाजत है, जो चाहें आप इस्तेमाल कर लें। अरे ये कहाँ गया? आ जाएगा हाजी साहब, दोपहर का वक्त है, हो सकता है रमजान की मुखालफत करने गया हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आगा सहाफ होते हैं यहाँ? सहाफजादा। जी हाँ, सहाफजादा। जनाब मैं आपके लिए एक अमानत लाया हूँ। मेरे ख्याल से आपको उसकी नए सिरे से मरम्मत करनी होगी। तुम्हारे ख्याल से मुझे क्या करना होगा? क्या आप सहाफी नहीं हैं? जो अमानत आप लाए हैं इसकी, जब से मैंने अपने मौला के जाकिर वालिद साहब के मशगले को छोड़ा है 20-30 साल गुजर चुके हैं। यानी आप सैयद खलील सहाफजादा नहीं हैं? बिल्कुल हूं, मगर अब मरम्मत करने वाला नहीं हूं नौजवान। ना तो चमड़ा लगाने का जोर है अब मुझ में, और ना ही उतना दिलो दिमाग है मेरे पास। अब तो सिर्फ एक कील ठोक रहा हूं इस उम्मीद पर कि मुझे नाउमीद ना करे। तो मैं सही जगह पर आया हूं। देखिए हाजी साहब, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरे वालिद साहब ने मुझे आपका पता बताया है कि मैं ये कुरान आपके हवाले कर दूं और चला जाऊं, क्योंकि ज़रा जल्दी में हूं। मुझे तो कल रमज़ान से पहले ही से आपको देना था, मगर मसरूफियात की वजह से ना आ सका। क्या वो कुरान है? हाँ, एक आम सा सादा सा कुरान। लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूं कि अब मैं मरम्मत का काम नहीं करता।
तुम्हारे वालिद साहब कौन हैं? क्या मैं उन्हें जानता हूँ? पता नहीं क्यों महसिन आजमी, अगर आपको याद हो तो। ये नाम आशना नहीं लगता। क्या वो मुझे जानते हैं? उन्हें मेरा पता कैसे मिला? आपको ख्वाब में देखा था उन्होंने। अलबत्ता मेरे वालिद साहब ने मुझे एक छोटे बाजार का पता दिया था। तुम्हारे बाबा ने क्या ख्वाब देखा था? खूब, यही कि मैं आऊं और कुरान आपको दे दूं कि आप इसकी मरम्मत कर दें। साल तो उम्र होनी चाहिए इसकी। जी बिल्कुल ही बोसीदा हो चुका है। जी हाँ। अच्छा हाजी साहब, अगर कोई हुक्म नहीं तो मैं जाता हूँ। भाई मैं आपसे कह तो चुका हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, आप मुझे अपना फोन नंबर लिख के दे दें। मैं देखता हूं कि इस कामों की भीड़ में मैं क्या कर सकता हूं। हाजी साहब, फोन नंबर किस लिए? मसलन कल को मुझे कुछ हो गया या ना भी हुआ तो मैं अपने अमले खैर के तौर पर अपने सारे मरम्मत और सहाफियत के सामान को निकाल के इसे तैयार कर दूं, तो फिर इसे तुम्हारे बाबा को लौटाना भी तो होगा या नहीं होगा? मैं अपना फोन नंबर आपको लिख कर दे देता हूं। इसकी सहाफियत एक दो दिन का काम नहीं है। सहाफ का नाम और गलतियों के ना होने की तस्दीक और सजावट करने वाले का नाम भी नहीं है। जी हाँ, ये लीजिए मेरा नंबर। खुदा ने इस लायक समझा और तैयार हो गया तो आपको इत्तला दे दूंगा। ये क्या है? ये मोहरें, शहादतें और दस्तखत क्या है ये?